मुस्लिम त्योहार मोहर्रम आने वाला है, जिसमें ताजिए स्थापित किए जाते हैं और 10 दिनों के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। तांदलजा क्षेत्र के ताजिए हर वर्ष वडोदरा शहर के सरसिया तालाब में विसर्जित किए जाते हैं, लेकिन इस बार पुलिस द्वारा तांदलजा क्षेत्र में ही कृत्रिम तालाब बनाकर विसर्जन की व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया था। इसके बाद आज कॉरपोरेशन की टीम डंपर और हिताची मशीन के साथ पत्रकार LIG क्षेत्र के मैदान में कृत्रिम तालाब बनाने पहुंची। इसी दौरान स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया और कहा कि मैदान में कृत्रिम तालाब बनाना सही नहीं है। અમારા રેસિડેન્ટ એરિયામાં તળાવ ખોદવાની વાત ચાલી રહી છે, એના માટે બધા અહીંયા જમા થયા છે ને અહીંયા આવા તળાવની કોઈ જરૂર નથી, કેમ કે ઓલરેડી તાંદલજામાં તળાવ છે. એવું હોય તો તમે ત્યાં જઈને એ સુધારો, ત્યાં બાજુ અમે તાજા ઠંડા કરીશું, ત્યાં બનાવી આપો. અહીંયા કોઈ જરૂર નથી, કેમ કે અહીંયા બધા બાળકો ને બધા રહે છે એ અંદર. હા, રેસિડેન્ટ એરિયા છે ને અહીંયા બધા લોકો ફંક્શન પણ અટેન્ડ કરે છે. આની કોઈ જાતની કોઈ નોટિસ આપવામાં આવી નથી ને એકદમથી આવીને આજે ગાડીઓ ઊભી થઈ ગઈ છે, એટલે બધા જમા થઈને આનો વિરોધ કરવા આવ્યા છે. અહીંયા આજ રોજ શાળા માટે ભેગા થયા છે કે અહીં તળાવ બનાવવાની કામગીરી હાથમાં લીધી છે કોર્પોરેશને. એ ગેરકાયદેસર છે, કારણ કે આ મેદાનની ઉપર નીચે વરસાદી ગટર પણ નાખેલી છે. પાણી તો ત્યાંથી જતું રહેવાનું છે, તો તળાવ ક્યાં બનવાનું છે? ને અમારે અહીં પત્રકાર સોસાયટીમાં આવી કોઈ તળાવની જરૂરિયાત છે નહીં. તાજા ડૂબાવા હશે તો અમે સરસા જઈશું, અથવા તો ગામમાં બી તળાવ છે ત્યાં જઈશું. અને અહીં નાના નાના બાળકો છે, રેસિડેન્ટ એરિયા છે, કાલે કોઈ ડૂબી મરશે તો જવાબદારી કોની છે? એટલે આ સ્થગિત કરવા માટે મહેરબાની છે. गुजरात के बोडेली में भगवान जगन्नाथ जी की दिव्य और भव्य रथ यात्रा बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ निकाली गई। बोडेली में जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा का आयोजन अपार श्रद्धा, आन बान और शान के साथ किया गया। यात्रा की शुरुआत शुभ मुहूर्त में श्री जलाराम मंदिर से की गई, जहां विधायक अभय सिंह तड़वी, प्रांत अधिकारी भूमिका रावत, रजनी गांधी, दीपक विजयवर्गीय, जिग्नेश चौकसी, अश्विन शाह और राजू सोनी सहित कई प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विधिवत पूजा अर्चना और आरती की गई। बोडेली भगवान जगन्नाथ यात्रानी अषाढ़ी बीजने दिवसे अमने अहींया आखा बोडेली ने नगर ने लावो मळ्यो छे अने भगवान ने बधा વધાવવા માટે નગરજનો ઉમટી પડ્યા છે. અને આખા બોડેલી નગરમાં, છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં બોડેલી એવું નગર છે કે રાજ્ય સરકારે મને रथ यात्रा करवानी मंजूरी पण मळेली छे। गुजरात के वडोदरा के शिनौर में भक्ति भाव के साथ रथ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वडोदरा जिले के शिनौर तालुका के मालसर गांव में भक्ति भाव और श्रद्धा से ओतप्रोत माहौल में भगवान जगन्नाथ जी की भव्य नगर यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इस धार्मिक आयोजन में भाग लेकर भगवान के दर्शन किए और पुण्य लाभ अर्जित किया। मंदिर के पुजारी सेवक नीलेश महाराज और गांव के सैकड़ों श्रद्धालु भक्त नगर यात्रा में शामिल हुए। यात्रा पूरे मालसर गांव में निकाली गई, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं ने भगवान के स्वागत में जयघोष किए। આજના ઉત્તમ દિવસ અષાઢ માસ શુક્લ પક્ષ બીજ અને પુનર્વસુ પુષ્ય નક્ષત્ર અને આજના દિવસે ભગવાન રામ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, સુભદ્રાજી અને બલદેવી નગર યાત્રા નીકળેલા અને ત્યારથી પરંપરાગત રથયાત્રા તરીકેનો આજનો દિવસ ઉજવવામાં આવે કે ભગવાન નગરમાં નીકળી અને સર્વના દુઃખોને જોઈ અને સર્વ જનતા જનાર્દનના દુઃખનું હરણ કરી અને સર્વને દર્શનની ઝાંખી આપી અને સર્વનું કલ્યાણ કરે છે। એવા ઉત્તમ દિવસે આજે સત્યનારાયણ મંદિર, નર્મદા તટે માલસર પરમહંસ માધવદાસજી મહારાજ, પૂજ્ય શ્રી ડોંગરેજી મહારાજની તપસ્થલીમાં રથોત્સવ જેનો ઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો। હું પણ બધા ભગવાનને પ્રાર્થના કરું કે સર્વનું મંગળ કરે, સર્વનું કલ્યાણ કરે અને આવતી દેશ ઉપર અને આપત્તિઓ વિપત્તિઓમાંથી બધાને દૂર કરે। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community.
V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918738 72606 or 919879 572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. वडोदरा शहर, जिसे कला नगरी का नाम दिया गया है, और इस शहर को यूं ही कला नगरी नहीं कहते। यहाँ हर गली, हर दीवार और हर सांस में कला बसती है। यहाँ मिट्टी से मूर्ति बनती है, कबाड़ से कल्पना और मलबे में मिलती है एक नई जिंदगी। और इसी का बेहतरीन उदाहरण आज हम आपको वीएनएम टीवी के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। वडोदरा के रहने वाले विपुल चौहान ने पुराने घरों के मलबे से खूबसूरत कैंडल स्टैंड्स तैयार किए हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके इस कला के बारे में। जैसा कि आपने पुराने घरों के मलबे से ये कैंडल स्टैंड तैयार किया है, तो इसका विचार कैसे आया कि मलबों से भी ऐसा कुछ बनाया जा सकता है? मैम, पहली बार तो जब मैंने देखा कि जैसे कोई घर में ओल्ड एज रहते हैं तो उनका पुराना, सभी का पुराना घर रहता है, उसमें ये सब वहाँ पे अच्छे से सब रखा हुआ होता है, मीन्स फिट किया होता है। तो अभी न्यू जनरेशन सबको चाहिए न्यूली, सब फर्नीचर से लेके सब कुछ। अभी उनका इनसे एक मेंटली कनेक्शन होता है, एक इमोशन होता है कि जैसे कि हाँ, हमने ये जो था दिया वहाँ पे, ऐसी
छोटे थे तो हमने दिया जलाया था, हम यहाँ रहते थे वगैरह। अभी उनका पूरा तो पुराना घर हम नए घर में तो शिफ्ट कर नहीं पाएंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि हम छोटे छोटे जो पार्ट्स है जो वो लोग ऐसे स्क्रैप में निकाल देते हैं, उसको मैं निकाल के इस तरीके से बनाया हुआ है। तो मतलब आपने इसको खुद डिज़ाइन किया है? हाँ, ये मैंने खुद डिज़ाइन किया हुआ है। और मतलब कितने दिन लगे आपको ये सब तैयार करने? मुझे 15 से 20 दिन लग गया मिनिमम। और मतलब इनमें से सबसे यूनिक डिज़ाइन कौन सा कह सकते हैं हम? जैसे कि यूनिक डिज़ाइन तो काफ़ी है, मीन्स जैसे ये कैंडल स्टैंड है तो आप उसको पॉट भी ऊपर रख सकते हो, उसको वैसे भी डिज़ाइन कर सकते हो। आप जैसे इसको चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो घर के अंदर इंटीरियर डिज़ाइन के हिसाब से। इस डिज़ाइन के बारे में बताइए। ओके, मैंने ये आप जैसे घर में पुराने जैसे खटिया होते हैं तो उसमें ये जो पाए वगैरह जो होते हैं वो खटिया टूट जाने के बाद लोग क्या करते हैं कि उसको स्क्रैप में फेंक देते हैं, तो मैंने उसको लेके ये एज अ शो पीस के हिसाब से और यहाँ पे कैंडल रक्स के भी आप इसको लगा सकते हैं, वैसे इसको डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो प्रोडक्ट है वो शो पीस के लिए है, और ये पुराने ओरिजिनल जो साग के लकड़े आते थे उसमें से ये बना हुआ था, उसको हम लोग ने रिस्टोर किया हुआ है। और जैसे कि आप देख रहे हो ये पुराने घर के बाहर की ओर और अंदर की ओर लगाए जाते दिए इसमें बनाते थे, और उसको ये वैसे लगाया है, उसको हम लोग ने वापस से रिस्टोर किया हुआ है। तो जैसा कि ये आपने पुराने घरों के मलबे से तैयार किया है, तो कितने साल पुराने मलबों से ये तैयार किया गया है? मैम मिनिमम 150 से 100 ईयर्स पुराना होगा ये चीज़, और इसको हम लोग ने पूरा एक ये जो लुप्त हो रहा है ये जो चीज़ अभी लोग उसको कबाड़ में फेंक दे रहे हैं, उसको मैंने न्यू डिज़ाइन देके इसको नए कॉन्सेप्ट से अपने हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है। ये अभी जो आप देख रहे हो ये जैसे कि आप शो पीस के लिए कहीं पे भी रख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वडोदरा शहर में हर गली हर मोहल्ले में कला बसती है, और जब भी हम कला की बात करते हैं तो हस्तकला को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि यही वो कला है जो हमारे भारतीय संस्कृति को दर्शाती है। और आज इसका ही एक जीवंत उदाहरण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर हैंडमेड बैग्स और डेकोरेटिव आइटम्स, साथ ही हैंडमेड राखीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस कला के बारे में हम जानते हैं। सर, जैसे कि ये हैंडमेड ये चीज़ें हैं, बैग्स हैं, डेकोरेटिव आइटम्स है, राखी है, तो मतलब किस तरह से इसे तैयार किया गया और कितनी मेहनत लगती है? मैम, ये जो चीज़ें हैं ये कच्छ की है, और कच्छ ऐसा जिला है जहाँ पे हम लोग रेगिस्तान बोलते हैं, और वहाँ के लोग बहुत 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 गर्मी में रहते हैं। मगर ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं ये बहुत कलरफुल है। उनके जीवन में वहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, कलर नहीं है, इसलिए वो अपने हाथों से ये सब बुनते हैं। और ये सब बैग से, ये बैग है, इसको कच्छी भाषा में बचकड़ी बोलते हैं। जैसे छोटी लड़कियाँ जैसे शादी करके 18-19 साल की जब जाती है तो उसके अंदर, इसके अंदर उनके पेरेंट्स या माँ बाप है वो कुछ खाना देते हैं कि रास्ते में मेरी बच्ची को भूख लगेगी तो क्या खाएगी, शर्म से कुछ मांग नहीं पाएगी तो वो क्या खाएगी, तो वो इसके अंदर देते हैं। ये है, आजकल हम लोग सब मोबाइल कवर रखते हैं, ये करीबन 150 साल पुराना हैंड वीविंग मोबाइल कवर है, वेरी ऑथेंटिक वीविंग किया हुआ है। और दुर्गा क्रिएशन द्वारा ये सब चीज़ें इकट्ठा की हुई है। ये जो राखी आप देख रहे हो ये दुर्गा क्रिएशन द्वारा की गई है। इसके अंदर आप ब्यूटीफुली कार्व गणपति, फ्लावर्स, क्रोशिया से बनाई हुई हैंडमेड राखीज, इसके अंदर नक्षत्र, कलर शास्त्र का बहुत ध्यान रख के ये सब डिज़ाइन की गई है। इन सभी चीज़ों को प्रदर्शित किस दिन किया जाएगा? एग्जीबिशन कब है? 28 और 38 त्रिशा गैलरी में सुबह 10 बजे से रात को 9 बजे तक, और 3 नंबर की गैलरी में ये किया जाएगा, जिसके अंदर आपको विकी सर के द्वारा जो भी आपने कैंडल्स देखे और दुर्गा क्रिएशंस द्वारा जो भी ये कुछ है उसका एग्जीबिशन त्रिशा गैलरी में हम लोग करने वाले हैं।
हर चीज़ की एक कहानी होती है और जब उन कहानियों को एक नई सोच और कलाकार का स्पर्श मिल जाए तो वो एक मिसाल बन जाती है। और ऐसा ही कुछ आज हमने देखा इन हैंडमेड डेकोरेटिव आइटम्स और पुराने घरों के मलबे से बने कैंडल स्टैंड के जरिए। और इसी तरह की महत्वपूर्ण और खूबसूरत जानकारियों के लिए देखते रहिए VNM TV।